اہم خبر سے آغاز کریں۔ پاکستان ماضی میں امریکی گروپ کا حصہ تھا مگر اب کسی بلاک میں شامل نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے روسی ٹی وی کو انٹرویو میں واضح کر دیا، کہا بیرونی امداد لعنت ہے، عوام کو غربت سے نکالا تو رب کے حضور سرخ رو ہوں گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے تنازع کی اصل وجہ قرار دیتے ہوئے نریندر مودی کو ٹی وی پر مناظرے کا چیلنج بھی دے دیا۔ We have a bilateral relationship with Russia. We really want to strengthen it. 30 سال بعد پاکستانی سربراہ کے طور پر تاریخی دورہ روس میں مہمان بننے سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کا روسی ٹی وی کو انٹرویو، واضح کر دیا کہ بیرونی امداد ایک لعنت ہے اور یہی وجہ تھی جو ماضی میں پاکستان امریکی گروپ کا حصہ تھا مگر اب کسی بلاک میں شامل ہونا نہیں چاہتا۔ We should have then been non-aligned, independent country, stood on our own feet, not relied on aid. We became part of a bloc because we got foreign aid. When you look back, foreign aid is a curse for a country. وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی قیادت کی سفاکیت کو بھی اجاگر کیا، بولے وہ نریندر مودی کے ساتھ ٹی وی پر ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہیں۔ That this is not the India I used to know because it's been taken over by this mad ideology. It's a racist ideology which was inspired by the Nazis. I would love to debate with Narendra Modi on TV. وزیر اعظم نے انسانوں کو غربت اور بھوک سے بچانے کے لیے امیر ملکوں سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ The only way to stop this people dying of hunger and poverty and this imbalance is for the rich countries to make laws like they have for drug money, like they have for terror financing. They should not allow. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر وہ قانون کی بالادستی اور عوام کو غربت سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو مرنے کے بعد اپنے خالق سے پورے اعتماد کے ساتھ ملیں گے۔ When you cut off a country from its roots, a nation, and try and ape another culture, they become neither one thing or the other. In Urdu we say neither teeter or a bater. If I can bring rule of law in Pakistan and raise our people out of poverty on the lines what China has done, I would be able to meet my maker with confidence. وزیر اعظم کا کہنا تھا پاکستان تمام ملکوں کے ساتھ تجارتی تعلقات چاہتا ہے، تنازعات کا حل طاقت سے ممکن نہیں، یوکرین اور روس کا تنازع بھی پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں روس اور پاکستان دونوں چین کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ماسکو مزید اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ 2 دہائیوں کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان سربراہ اجلاس ہونا غیر معمولی قدم ہے۔ وہ اس وقت ماسکو میں سما کے نمائندے عباس شبیر کے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کل روس کے ایک اہم دورے پر ماسکو پہنچیں گے اور اس وقت جس جگہ پر موجود ہوں میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہوٹل ہے جہاں پر وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے اراکین رہائش پذیر ہوں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل موجود ہیں۔ شہباز صاحب، کتنا اہم دورہ ہے اور اس خطے میں امن کے حوالے سے اس دورے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بھارت کی نظریں بھی اس دورے پر ہیں اس وقت۔ دونوں ملکوں کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو بہت ہی اچھی ہسٹری بھی رہی ہے۔ 1948 میں مئی 1 کو پاکستان نے رشیا کو تسلیم کیا، رشیا نے پاکستان کو۔ 70s کے اندر رشیا کا ہمارے ساتھ ایک کولیبریشن رہا جو سٹیل مل کا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ سرد میری ہوئی۔ اب دوبارہ اگر آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی حکمران آئے لیکن وہ بائیلیٹرل اس طرح کی انگیجمنٹ نہیں تھی جیسی اب ایک سمٹ لیول کی پرائم منسٹر عمران خان اور پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کی جو ایکسچینج ہونے جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ رشیا جو ہے وہ چائنا کا اسٹریٹجک الائے ہے اور چائنا ہمارا اسٹریٹجک الائے ہے، تو اس لیے رشیا اور پاکستان کا ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ ہندوستانی میڈیا کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک تو وہ قسمت کو اور مقدر کو نہیں ہرا سکتے، اور دوسرا انہیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ ان کے پاس مودی ہے، ہمارے پاس عمران خان ہے۔ پاکستان میں یوکرینی سفیر کہتے ہیں روس ان کے ملک کی سالمیت اور خود مختاری کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جنگ مسائل کا حل نہیں۔ مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے دورے کے دوران روسی قیادت کے ساتھ معاملہ اٹھائیں۔ یوکرین کے سفیر مارکیان چوچک نے اہم پیغام میں کہا کہ پاکستان ایک جوہری طاقت ہے، اسے اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یوکرین کو 8 سال سے بیرونی فوجی جارحیت کا سامنا ہے، روس یوکرین پر حملہ کر کے قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یوکرینی سفیر نے مطالبہ کیا کہ روس عالمی قوانین کی پاسداری کرے اور تمام تصفیہ طلب مسائل کا بات چیت سے حل نکالا جائے۔
روسی صدر کے فیصلے نے مہنگائی کے ستائے عوام کو مشکل میں ڈال دیا. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا. برینڈ کروڈ $99 فی بیرل تک پہنچ گیا. قدرتی گیس اور ہیٹنگ آئل بھی مہنگا ہو گیا. دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس بھی منفی زون میں آ گئیں. پاکستان اسٹاک مارکیٹ بھی مندی کا شکار ہے. ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 600 سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی. سما کے سینئر پروڈیوسر اطہر متین کے قاتل 4 دن بعد بھی پکڑے نہیں جا سکے. صحافتی تنظیموں نے کراچی پولیس چیف کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا اور شارع فیصل پر دھرنا دیا. شہید اطہر متین کی بیٹیاں اور بھائی بھی انصاف مانگنے کے لیے موجود تھے. جرنلسٹ ایکشن کمیٹی نے کل پریس کلب سے سندھ اسمبلی تک مارچ کا اعلان کیا ہے. 5 دن بعد بھی سما کے شہید سینئر پروڈیوسر اطہر متین کے قاتل آزاد ہیں. کراچی کے صحافی اپنے ساتھی کے قتل پر انصاف نہ ملنے پر احتجاج پر مجبور ہوئے. شارع فیصل پر کراچی پولیس چیف کے دفتر کے سامنے جمع ہوئے اور دھرنا دیا. دھرنے میں اطہر متین شہید کی بیٹیاں بھی اپنے پاپا کے قتل کا انصاف مانگنے پہنچی تھیں. مجھے بس اپنے پاپا کے لیے جسٹس چاہیے, مجھے انصاف چاہیے, کیونکہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا جس سے وہ یہ سب ڈیزرو کریں. مجھے یہ بھی غم نہیں ہے کہ صرف میرے بابا, آج میرے بابا ہیں کل کسی اور کے ہوں گے. جس بھی پولیس نے کیا ہے, آئی ہیٹ یو وتھ ایوری سیل آف مائی باڈی. شہید صحافی کے بھائی طارق متین نے کہا کہ قتل کے بعد آدھے گھنٹے تک پولیس سمیت کوئی سیکیورٹی اہلکار نہیں پہنچا. 900 میٹر کے فاصلے پر ان کو گولی کی آواز سنائی نہیں دیتی. وہاں موقع پر موجود فقیر نہیں آ جاتی ہے, چوکیدار آ جاتا ہے, عام آدمی آ جاتا ہے, مارتا ہے, لیکن یہ لوگ نہیں آتے. یہ لوگ اس کے بعد وائرلیس چلاتے تو وہاں چاروں طرف ان لوگوں کا رستہ روکا جا سکتا تھا. وہاں پر چاروں طرف موجود رینجرز کے مراکز ہیں, ان کی وجہ سے وہاں پر امن ہونا چاہیے, نہیں ہے تو شریک جرم ہیں. دھرنے میں پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, مسلم لیگ فنکشنل, پی ایس پی, جے یو آئی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی. یہ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے, انہوں نے لاڑکانہ تباہ کر دیا. یہ کراچی کیا بنائیں گے؟ آپ جعلی ڈوموسائل بنا کے جیلوں کو لا کے یہاں تعینات کرتے ہو. شرم آنی چاہیے چیف منسٹر صاحب تمہیں, تم دشمن ہو اس شہر کے. دھرنے سے خطاب میں صحافی رہنماؤں کی جانب سے حکمراں جماعتوں کی سیاسی سرگرمیوں کی کوریج کا بائیکاٹ کرنے کی بھی تجویز دی گئی. وزیر اعلیٰ کے لالی پاپ دے کے چلے جاتے ہیں. میں یہ آج آپ کے سامنے تجویز رکھ رہا ہوں. بلاول بھٹو کا لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کا لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے, علی زیدی کا سندھ حقوق مارچ, دونوں کا بائیکاٹ کر دیں. کراچی پولیس چیف کے آفس کے سامنے دھرنے کے بعد صحافیوں نے شارع فیصل کے ایک ٹریک پر بھی دھرنا دیا. صحافیوں کی ایکشن کمیٹی نے قاتلوں کی عدم گرفتاری کی صورت میں کل پریس کلب سے سندھ اسمبلی تک مارچ کا اعلان کر رکھا ہے. اطہر متین کا خون رائے گا نہیں جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ کی لواحقین کو یقین دہانی. حکومت شہید کے ورثاء کی کیا مدد کرے گی؟ مراد علی شاہ واضح جواب نہ دے سکے. قاتلوں کی گرفتاری کے لیے تفتیش میں ہونے والی پیش رفت بتانے سے بھی انکار کر دیا. ہم اس واقعے کی جڑ تک پہنچیں گے. مرحوم اطہر کا خون جو ہے وہ رائے گا نہیں جانے دیں گے. ہم کامیاب بھی ہیں اور ناکام بھی. وزیر اعلیٰ سندھ شہید اطہر متین کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے گئے تو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ حکومت کچھ نہیں کر پا رہی. خراب معیشت اور منشیات کے دھندے کو بڑھتے اسٹریٹ کرائم کی وجہ ٹھہرا دیا. ایک بہت بڑی وجہ ہے ڈرگس جو اس معاشرے میں پھیل گئے, اور اس کے لیے بھی کل بھی ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے. وہ اگین اکیلی سندھ حکومت اس کو نہیں مینیج کر سکتی. ہمیں پورے ملک کی جو ہے حکومتوں کو اس میں ساتھ مل کے, اور اکنامک سچویشن جو ملک کی خراب تر ہوتی چلی جا رہی, اس کی وجہ سے بھی پیٹی کرائم بڑھ رہا ہے. تو یہ کہنا کہ کامیابی کیا وجہ نہیں ہو رہی, میرے خیال ہے درست نہیں ہے. شہید کے ورثاء کی مدد کا معاملہ ہو یا قاتلوں کی گرفتاری کے لیے پیش رفت, وزیر اعلیٰ نے واضح جواب نہیں دیا. جو بھی ریاست کے طور پہ
रियासती एक सतून के तौर पे जो हमारा फ़र्ज़ है वो पूरा करेगी। उसकी डिटेल्स में जाना या कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपने दूसरा सवाल किया, यस प्रोग्रेस हुई है, लेकिन जब तक हम तय तक पहुँच ना जाए हमको कोई बात करना मुनासिब नहीं है। एक सवाल पर मुराद अली शाह ने कहा कि पुलिस में भी ऊपर से नीचे तक सजा और जजा का निजाम ला रहे हैं। जनरल परसेप्शन आप सबकी भी है, क्योंकि एसएचओ को तो पता होता है कि उसके इलाके में क्या क्राइम हो रहा है, इस वजह से वहीं से शुरू होता है। इसी सिलसिले में कल एडिशनल आईजी साहब ने अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए भी एक फार्मूला दिया है, एक तरीक़ाकार दिया है, जो उधर से शुरू होता है और नीचे एसएचओ तक या इवन सिपाही तक जाता है, जो चौकी इंचार्ज है उन तक जाता है कि कैसे असेस करेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। तो ऐसा कोई नहीं है कि सज़ा से या जजा से कोई भी आउट होगा। वज़ीर आला सिंध ने यकीन दिलाया कि शहीद अतहर मतीन का खून रायगा नहीं जाएगा। आइंदा ऐसे वाक़ियात की रोकथाम के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, ऐसा लगता है कि कराची में कोई कानून ही नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह चाहें तो हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। वज़ीर दाखिला ने कराची के थानों में भी रेंजर्स फराहम करने की पेशकश कर दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, शेख रशीद ने उनसे ऐसी कोई बात नहीं की। हुकूमतें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर नहीं चलती। बड़ा जुल्म है। अतहर मतीन बहुत ज़बरदस्त आदमी था और कराची में मैंने कहा है अगर मुराद शाह साहब कहे तो हम रेंजर्स थानों में भी देने के लिए तैयार हैं। शेख रशीद साहब ने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं कि मुझे नहीं पता मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमतें नहीं चलती। कराची में कल जो मैंने हालात देखे हैं वो नागुफ्ता बे हैं। ये शहर वही शहर है जहाँ हम खड़े हैं जो आज से 7-8 साल पहले छठा सबसे ख़तरनाक शहर दुनिया का कहा जाता था। क्योंकि मैं मरकज़ का वज़ीर दाखिला हूँ, अगर कहूँगा तो बात बहुत दूर चले जाएगी। ये करंट एक सिनेरियो पैदा हुआ है स्ट्रीट क्राइम का, जो कि बिल्कुल जो है तशवीशनाक है और उस पर हमने स्टेप्स लेने चाहिए। ऐसे नज़र आ रहा है कि कराची में कोई कानून नहीं रहा और इसके बुरे नतीजे भी निकल सकते हैं। इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती हैं कि मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों और उसमें ये बातें हों। अब बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस की, जिसका ट्रायल मुकम्मल हो गया है। फैसला महफूज कर लिया गया है, जो 24 फरवरी को सुनाया जाएगा। हतमी दलाइल में मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के वकील ने कहा कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह तो है ही नहीं, जबकि इस्तगाज़ा के वकील ने कहा मुल्जिमान के वकला ने CDR को मानने का एतराफ़ किया है। शरीक मुल्जिमान को भी सजाए मौत या उम्र कैद दी जानी चाहिए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल तनोली। नूर मुकद्दम कत्ल केस में कौन कौन मुलविस और कौन कौन बच निकलेगा, 24 फरवरी को सब पता चल जाएगा। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अतार अबानी ने समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया। मकतूला के वालिद का अदालत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। हमें अदालत के जज साहब पे पूरा भरोसा है, उन्होंने डिफेंस को पूरा मौका दिया और बहुत फेयर ट्रायल की। डिफिकल्टीज हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं पुलिस के ऊपर, विद इन द लिमिटेशंस पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। ट्रायल के अख्तामी रोज इस्तगासा के वकला ने हतमी दलाइल दिए। मुद्दई के मावन वकील निसार असर ने कहा जो ड्रग पार्टी करवा दी गई वो 16 घंटे 31 मिनट की CCTV फुटेज में तो कहीं नजर नहीं आती। प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास ने कहा सबसे बड़ा सबूत है कि जाहिर जाफर जाए वकुआ से आला कत्ल के साथ गिरफ्तार हुआ। DVR को मुस्तनद करार दिया गया है और आखिरी सबूत के तौर पर लिया गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट इस केस को मजीद मजबूत करती है। साबित होता है कि नूर मुकद्दम को कत्ल से कबल टॉर्चर किया गया। जाकिर जाफर को बेटे ने खुद कत्ल करके फोन पर बताया, मगर वालिद ने पुलिस को इत्तला न दी। थेरापी वर्ष का बंदा जख्मी हुआ, उन्होंने डेड बॉडी देखी लेकिन पुलिस को आगाह नहीं किया। वो तो मुलजिम को बांध कर जाए वकुआ से ले भी जाते, लेकिन पुलिस मौका पर पहुंच गई थी। मुलजिम जाकिर जाफर के वकील बिशारतुल्लाह ने जवाबी दलाइल में कहा कत्ल का कोई चशमदीद गवाह है ही नहीं। 3 घरेलू मुलाजमीन के वकील सिजाद भट्टी ने अपने मोकलों की बरियत के लिए दलाइल दिए। यहाँ तक कह दिया कि नूर मुकद्दम के कत्ल पर क्या सारे शहर को फांसी दे दी जाए। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ आदिल तनोली, समा इस्लामाबाद। कप्तान शाहिद खान आफरीदी का कहना है कि हारिस रऊफ इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ये हरकत ठीक नहीं थी, उसे आइंदा एहतियात से चलना पड़ेगा, मुस्तकबिल में कोई ये बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रोग्राम गेम सेट मैच में गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर कलंदर्स को खुद इस पर एक्शन लेना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेटर है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर है, तो इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। बुरा लगता है। रऊफ को आइंदा बहुत एहतियात से चलना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें जो है ना उसकी मेरे नहीं ख्याल के दोबारा कोई बर्दाश्त करेगा। मैं ये समझता हूँ कि लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को एक्शन लेना चाहिए था इस पर। ये जो मैच हुआ बड़ा ज़बरदस्त और शाहीन ने जो करके दिखा दिया वो बड़ा ज़बरदस्त। अब मुझे पता चला कि शाहीन मुझसे बार बार क्यों कहता है कि लाला मुझे आपका बैट चाहिए, मैंने अभी तक दिया नहीं है उसको। रिजवान माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग एज अ कैप्टन टीम को लीड कर रहा है। मुल्तान सुल्तान को हमारे फ्यूचर का भी कप्तान है पाकिस्तान टीम का इंशाल्लाह।
महकमा तालीम सिंध ने सूबे भर में स्कूलों को 100% हाजिरी के साथ खोलने का फैसला कर लिया। नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। इसी पर बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा जमजम सईद हमारे साथ हैं। जमजम, यानी स्कूल अब मामूल पर आने की बातें शुरू हो गई हैं? जी बिल्कुल, सिंध के वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का आज इजलास हुआ। इजलास में अहम फैसले किए गए। स्कूलों को पीर के रोज से जो है 100% हाजिरी के साथ खोल दिया जाएगा, जबकि नया तालीमी सेशन 1 अगस्त से शुरू होगा। जून जुलाई गर्मियों की तातीलात होंगी, जबकि 9वीं 10वीं जमात के इम्तिहानात 17 मई से शुरू होंगे और इंटर के इम्तिहानात जो है वो 15 जून से होंगे। मैट्रिक और इंटर बोर्ड में अब OMR सिस्टम के तहत पर्चे का 40% जो है वो MCQs पर मबनी होगा। बहुत शुक्रिया जमजम। सियासी मामलात का जिक्र, मुस्लिम लीग नून का वफ्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शाइये में आज शिरकत करेगा। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात का भी इम्कान है। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, बताइएगा कब तक शुरू हो रही है ये मुलाकात? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून का जो वफ्द है वो बिलावल हाउस पहुंचेगा। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो हैं वो ऑलरेडी बिलावल हाउस पहुंच चुके हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से शहबाज शरीफ के एजाज़ में ये इशाया रखा गया था। कहने को ये एक पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त है, लेकिन बातें होंगी सियासत की, और जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि तहरीक अदम एतमाद और PDM का जो लॉन्ग मार्च है और पीपल्स पार्टी जो अपना लॉन्ग मार्च शुरू करने जा रही है उस हवाले से भी मुशावरत होगी। उसके अलावा आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की जो मुलाकात हुई उस हवाले से भी शहबाज शरीफ को एतमाद में लिया जाएगा। उसके अलावा ज़राए का ये कहना है कि शहबाज शरीफ की जो मौलाना फजल रहमान और उसके बाद जो चौधरी बरादरान के हवाले से मुलाकात हुई उस हवाले से भी वो आसिफ अली जरदारी को एतमाद में लेंगे, और इसके बाद दोनों जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके रहनुमा कोई अपना आइंदा का लाहे अमल देंगे। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया मोहसिन। अपोजिशन के 2 बड़ों की मुलाकात से पहले शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर नून लीगी रहनुमाओं की मशावरती बैठक हुई। लीगी रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च पर लाहौर में बड़ा वेलकम करने की तजवीज़ दी है। इस पर बात करेंगे, समा लाहौर के ब्यूरो चीफ नईम हनीफ हमारे साथ हैं। नईम साहब, बड़ा वेलकम करने की बातें हो रही हैं, मज़ीद क्या है अंदर की कहानी, बताइए। जी बिल्कुल, रवानगी से कबल जो है वो मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह पर नून लीग के दीगर रहनुमाओं के साथ एक मुलाकात हुई है, जिसमें तजावीज़ ली गई तमाम रहनुमाओं से। इस मौका पर लीगी रहनुमा ने शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को लाहौर में वेलकम करने की तजवीज़ दे दी है। जो तजवीज़ जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के सामने भी रखी जाएगी, और यकीनन ये तजवीज़ नहीं है, ऑफर बन जाएगी। और उसके अलावा पार्टी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च लाहौर पहुंचने पर खिताब करने का भी मशवरा दिया कि मियां शहबाज शरीफ जो है अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, वो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से लाहौर में खिताब करेंगे। जबकि लीगी रहनुमा ने आज शाम होने वाली मुलाकात के हवाले से अहम निकात पर शहबाज शरीफ से गुफ्तगू की और उन्हें अपने मशवरे दिए, तजावीज़ दी। तहरीक अदम एतमाद समेत तमाम कानूनी व आईनी ऑप्शन के इस्तेमाल करने के हवाले से भी आसिफ अली जरदारी से आज तबादला ख्याल किया जाएगा। जबकि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर लीगी वफद पीपल्स पार्टी से आइंदा के लाए अमल के लिए SOPs तय करेगा। ये बहुत ही एक अहम मुलाकात है, बहुत ही अहम मुलाकात, और इसमें बहुत ही अहम तजावीज़ दी गई हैं। देखते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का ये साथ कब तक चलता है। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। इत्तेहादियों से बात कर रहे हैं, जहांगीर तरीन से भी कर लें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने तहरीक इंसाफ को मशवरा दे दिया, कहा सियासतदान कभी अपने दरवाजे बंद नहीं करते। अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी भी की, कहा नाकामियां इनका मुकद्दर हैं। अदम एतमाद के बाद का नक्शा क्या होगा ये इनको भी नहीं मालूम। अपोजिशन की सियासी गलतफहमियां इन्हीं के गले पड़ेंगी। तहरीक इंसाफ जहां और लोगों से बात कर रही है, जहांगीर तरीन से भी बात की जाए तो जिम्मेदारी का सबूत देगा। और अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं ये कहूंगा कि जहांगीर तरीन से भी बात होनी चाहिए। सियासतदान कभी दरवाजे बंद नहीं करता। नून लीग 14 साल बाद काफ लीग की तरफ जा सकती है, तो इमरान खान और जहांगीर तरीन तो पुराने साथी हैं। माफी चाहता हूँ, तहरीक इंसाफ मुझसे नाराज ना हो, मैं सियासी राय देने में आजाद हूँ। अगर आपने ना मिलना हो ना मिलें।
अपोजिशन बड़े शौक से आए हैं, आप कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप एकदम इत्मीनान लाए उसमें भी आप नाकाम होंगे। 172 मेंबर लाना आपका काम है। बाद में ये कहेंगे नहीं जनाब अली फोन आ गया था, कोरोना हो गया था। 1 साल रह गया इलेक्शन। ये अपोजिशन अदम इत्मीनान का वोट लाएगी तब भी फंसेगी और उसके नतीजे पे भी फंसेगी। बिलावल जरदारी साहब आ रहे हैं, बड़े शौक से आए, इनको समझ ही कुछ नहीं आ रही। इनकी सियासी गलत फहमियों से कोई बड़ा सियासी हादसा हो सकता है। ये इंतशार और खलफशार इनके गले पड़ेगा। बड़के मारते थे और बड़े बड़े लोगों के खिलाफ नाम लेके बयान दे रहे थे, ये अपने बिलों में घुस गए और कलंदर जो है वो छाया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला कलंदर छाएंगे और ये फारग हो जाएगा। मुल्क में पहली डिजिटल मर्दमशुमारी के लिए इस्लामाबाद में नेशनल सेंसस कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम कर दिया गया। मर्दमशुमारी के लिए फील्ड वर्क अगस्त-सितंबर में होगा। आइंदा आम इंतखाबात नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर होंगे। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं मर्दमशुमारी के लिए मई और जून में पायलट टेस्ट होगा। नेशनल सेंसस कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर सिर्फ ये वफाक के लोग नहीं बैठे हुए, ये कनेक्टेड होगा तमाम सूबों के साथ। ये बुनियादी ब्लॉक है, सुतून है, जिसके ऊपर पूरी मुस्तकबिल की मंसूबा साजी का दारो मदारत है। मई जून के अंदर होगा पायलट टेस्ट। अगस्त सितंबर के अंदर आप समझ लें कि आपका फील्ड वर्क होगा, जो मेन फील्ड वर्क है। नवंबर के महीने में ऑडिट किया जाएगा सैम्पलिंग बेसिस पे। फौज के किरदार सिक्योरिटी का होगा, सिर्फ उनका डेटा और टेकिंग के अंदर और सेंसस के अंदर बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट नहीं। 10 अरब रुपए के करीब का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लिया जा रहा है। सिक्योरिटी वाला के एस्टिमेट्स हमारे पास आने हैं। 5 अरब रुपए जारी अखराजात के अंदर रखे गए हैं इस साल के सेंसस के लिए, लेकिन इसका जो ज़्यादा हिस्सा है वो अगले साल आएगा। और एक अच्छा शफाफ मर्दमशुमारी जिस पे कौम का एतमाद है, एक अहम सुतून है। इतनी तो सिविल कोर्ट ने कभी तारीखें नहीं दी, इतनी अपोजिशन दे चुकी है। और मामला जो है वो नवाज शरीफ और जरदारी साहब से शुरू होके मरियम और बिलावल तक पहुंच चुका है। अब वो तीसरी नस्ल भी तैयार हो रही है। तो तारीखें पहले भी बहुत सारी सुनी है भाई, ये वाली भी सुन लेंगे। 18 अगस्त 2023 तक तो इमरान खान वजीर आजम है, उसके बाद इलेक्शन होगा 60 दिन के बाद, तो टाइम बहुत है उसके लिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं सदर आरिफ अलवी अहम रियासती ओहदेदार के बजाय रोज़ाना उजरत लेने वाले मुलाजिम की तरह काम कर रहे हैं। रात को जो ऑर्डिनेंस भेजा जाए दस्तखत कर देते हैं। लीगी रहनुमा ने मौजूदा हुकूमत को चंद रोज का मेहमान करार दिया। सदर का ओहदा रियासत का ओहदा होता है। बदकिस्मती से वो आज हुकूमत के एक डेली बेज के मुलाजिम के तौर पर काम करते हैं। रात को कोई ऑर्डिनेंस आए उसको साइन करके भेज देते हैं। अब एक ऑर्डिनेंस आया है जिसके तहत अगर आप फेक न्यूज करेंगे तो आपको हुकूमत अंदर कर देगी और आपकी बेल भी नहीं हो पाएगी। इसकी क्या जरूरत है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये अवाम की आवाज दबाने, ये हक की आवाज दबाने का एक और जरिया है। लेकिन ये चीजें कभी चलती नहीं है। ये हुकूमत जिसने जमहूरियत का तबाह किया, जिसने पार्लियामान को खत्म कर दिया, आज मीडिया की आवाज, अवाम की आवाज दबाने के लिए हर कोशिश कर रही है। और मेरी DGFIA, ये IG पुलिस जो सूबों के हैं, इस्लामाबाद के हैं, इनसे गुजारिश है कि इस हुकूमत के दिन थोड़े हैं, इसके गैर कानूनी गैर आईनी अमाल में शरीक मत हो, वरना कल नुकसान आपका होगा। ये तो कल आपको भी छोड़ के भाग जाएंगे। नो कॉन्फिडेंस का मामला मुशावरत हो रही है, इंशाअल्लाह वक्त में पेश हो जाएगा और वक्त दूर नहीं है। बिल्कुल इमरान खान साहब ठीक कहते हैं कि घबराए नहीं। उन्होंने अवाम को भी कहा था, अवाम तो घबरा गए। मेरे ख्याल अब इमरान खान के घबराने के दिन है। हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि इसके बाद हुकूमत बनाने की जरूरत नहीं है, आपको अवाम के पास जाना होगा, क्योंकि इस नाकाम निज़ाम का हिस्सा बनने का मकसद कोई। वफाकी हुकूमत ने जुमे को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। मुमकिन तहरीक अदम एतमाद से निमटने के लिए हुकूमत ने अरकान कौमी असम्बली से राब्ते तेज करने का भी फैसला किया है। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खान सानी हमारे साथ हैं। जी टिक्का, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने इस जुमे को इसी हफ्ते यानी कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला किया और जुमे को दिन 11 बजे ये इजलास जो है बुलाया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान और मशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अमान के दरमियान जो गुज़श्ता रोज मुलाकात हुई थी, उसमें बाकायदा तौर पर इस पर इत्तफाक हुआ है और ये फैसला हुआ है कि पार्लिमानी अमूर के मिनिस्टर जो है, वज़ारत जो है, वो इस हवाले से समरी मूव करेगी। और इसके साथ साथ इस पर जो एजेंडा है, इस पर खास तौर पर इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के हवाले से तरमीमी बिल इस पे पेश किया जाएगा और वज़ीर आज़म का जो लॉ रिफॉर्म्स का पूरा एजेंडा है वो इस इजलास में पेश किया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा रूस से कबल ही हिकमत अमली जो है वो तरतीब दे दी है वज़ीर आज़म ने। आज खास तौर पर वज़ीर ने अपने मशीर मुआवने खसूसी पार्लिमानी अफेयर और सियासी अमूर आमिर डोगर से मुलाकात की है। इसके साथ साथ दीगर जो रुफका है उनसे मुशावरत किया और
प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी मंसूबाबंदी तैयार कर ली है। इस हवाले से अरकान के साथ राब्ते तेज किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अतिका खान सानी, आपने आगाह किया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद को 5 साल मुकम्मल हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शहदा की कुर्बानियों और अवाम के अज़्म और जुर्रत को सलाम पेश किया। DGISPR ने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि 5 साल पहले शुरू किए गए ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मकसद 2 दहाइयों से जारी जंग और दहशत गर्दों का खात्मा था। इस ऑपरेशन का बुनियादी मकसद अवाम की सिक्योरिटी यकीनी बनाना था। ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी रहा और इसके नतीजे में मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से निकल कर पुरअमन हुआ। रद्दुल फसाद की कामयाबियां शहदा के खून से मुमकिन हुई। किस्म में पंजाब के बुनियादी मराकज़ सेहत में 1000 माएँ ज़चगी के मुख्तलिफ मसाइल के बायस जाँ बहक हो गईं। इसी पर बात करेंगे। दानियाल उमर हमारे साथ हैं। दानियाल, क्या आदाद शुमार हैं? देखिए, पंजाब हुकूमत की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। गुज़श्ता साल रोजाना 2 से ज़ायद माएँ जो हैं वो दौरान ज़चगी जान की बाजी हासिल रही हैं। बुनियादी मराकज़ सेहत पर गुज़श्ता साल पैदा होने वाले तकरीबन 88,000 से ज़ायद बच्चे जो है वो अपनी जान गंवा बैठे हैं, जिसके अंदर जो है वो 25,208 बच्चों की उम्र जो है वो 5 साल से कम थी। इसी तरह 13,000 से ज़ायद बच्चे जो है वो अपनी पैदाइश के 28 दिन के अंदर और 8,000 से ज़ायद बच्चे जो है वो अपनी सालगिरह से पहले ही फौत हो चुके हैं। और ये तमाम तर रिपोर्ट जो है वो महकमा सेहत पंजाब को भी जमा करवाई गई है कि इस बात को इवेलुएट किया जाए कि क्या जो बुनियादी मराकज़ सेहत है उनकी हालत ज़ार दुरुस्त है, जिसकी वजह से ये तमाम तर अमवात जो है वो रिपोर्ट हो रही है। बहुत शुक्रिया दानियाल। टिक 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 टिक, मुल्क भर की कचहरियों से आने वाली इस आवाज़ को कंप्यूटर ने खामोश कर दिया, लेकिन लाहौर के बाबा मुश्ताक आज भी टिक टिक पर उंगलियां टिका कर रोजी रोटी के लिए लाहौर की अदालतों में टिके हुए हैं। अरशद अली की रिपोर्ट देखते हैं। एक ज़माना था कि अदालतों में आने वाले साइलिन को ये आवाज़ खुशामदीद कहती थी। और बड़े से बड़ा वकील भी टाइपिस्ट से ताल्लुक़ बनाकर रखता था। बाबा मुश्ताक आज भी वो वक्त याद करते हैं। उस वक़्त ज़्यादा यानी कि काम अच्छा था, अच्छा वक़्त पास होता था, तो उस वक़्त अमले की भी इज़्ज़त थी। लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी की बना पर ना मैं उसको फॉलो नहीं कर सका। बाबा मुश्ताक ने भी जदीद टेक्नोलॉजी सीखने की कोशिश की, लेकिन नाकामी की सूरत में हिम्मत नहीं हारी, बल्कि पुरानी मशीन के साथ ही रोज़गार जारी रखा। अभी भी मैं इसी पे रोजी कमा रहा हूँ। अल्लाह मियाँ मेरी रोजी का सबब पैदा कर देता है। वकला कहते हैं कि बाबा मुश्ताक से पुराना और एहतराम का ताल्लुक है जो इन्हें यहाँ खींच लाता है। इनका इखलाक बड़ा अच्छा है हमसे, और हम जो कमिटमेंट के बड़े पक्के हैं, जो हमें टाइम देते हैं उसमें हमारा काम हो जाता है, ठीक है। और दूसरी है कि ये काफ़ी हार्ड वर्कर हैं, लोगों के साथ इनका बिहेवियर बड़ा अच्छा है और बड़े अच्छे अखलाक से पेश आते हैं। ये इनकी खूबी है जो हमें हर बार हम इनके पास ही आते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना वक्त का ज़िया है, लेकिन नाकामी की सूरत में घर बैठने की बजाय ज़िंदगी से लड़ना भी एक मिसाल है। लाहौर की कचहरियों से आने वाली ये आवाज़ें अब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं, मगर बाबा मुश्ताक अब भी अपनी ज़िंदगी का पहिया चलाया जा रहा है और मेहनत किए जा रहा है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि इस्लामाबाद में बहार का रंगारंग फैशन शो से खैर मकदम हुआ। खूबसूरत पहनावों में मॉडल्स ने रैंप पर अदाएं दिखाई तो शायकीन ने भी खूब दाद दी। रिपोर्ट करेंगी फरार अब्बानी। रुत बदली, अंदाज बदले, जाड़े को टाटा बाय बाय कहने के दिन आए। शहर इक़्तिदार में फैशन शो सजाकर बहार का रंगारंग इस्तकबाल किया गया। चंचल हसीनाओं ने धीमे और शोख रंगों के उरूसी मलबूसात में रैंप पर खूब जलवे बिखेरे। पहनावों के मगरबी अंदाज भी हाजिरीन को खूब भाए। सिरों की लय पर रक्स के तड़के ने महफिल को चार चांद लगा दिए।
सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत आउट क्लास, बहुत शार्प, बहुत ब्राइट कलर्स भी हम लोग पहन सकते हैं। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है लोगों के लिए, होने चाहिए इवेंट्स इस्लामाबाद में। जहाँ तक ब्राइडल कलेक्शन की बात है तो कलेक्शन काफ़ी अच्छी थी। शायकीन का कहना था मसाइल में घिरी तेज रफ्तार मशीनी जिंदगी की घुटन में ऐसी दिलकश तकरीबात हवा के ताज़ा झोंके से कम नहीं। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ फरर रब्बानी, समा, इस्लामाबाद।